Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a science teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajada. Student, today I am taking the chapter number 12 of the class 10 science electricity as a introduction. This is a part of the chapter number 12 as a introduction. Okay, student. We know that by the definition of the current, यहाँ पर इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी डायग्राम्स हैं, हम उसके ऊपर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट. We will start with the first topic, that means electricity. Electricity in the normal life, हमारे घर में जो भी करंट आता है हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी. बट अगर जो हम प्रॉपर साइंस की लैंग्वेज में समझे तो इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स अ करंट. व्हाट इज द मीन ऑफ करंट? ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए. करंट दैट मीन्स Q by T. What is the meaning of the Q? Q that means a charge, and T that means a time. A ratio between the charge and time are known as current. It is represented by capital I. First one, what is the meaning of the current? A ratio between the charge and time. A ratio बिटवीन चार्ज एंड टाइम. अब आप ये सोचेंगे सर व्हाट इज द मीन ऑफ द चार्ज, तो हम समझाते हैं. चार्ज एंड मास बोथ आर द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैटर. व्हाट इज द मीन ऑफ द फंडामेंटल, मतलब ये जो है इसको और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता. आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मीन ऑफ द चार्ज, तो चार्ज होता है, मास होता है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते. बट ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज एंड मास वी कैन डिफाइन अनदर फिजिकल क्वांटिटीज. So what is the meaning of the charge? Charge that means a fundamental quantity of matter. So the characteristic of charge or types of the charge: positive charge and negative charge. Let me consider Q is a amount of charge, symbol of charge, positive or negative. Let me consider positive and positive, two positive charge or two negative charge. Both are the same, that means a like charge consist a repulsion force. Which type of the force? Repulsion force between the two unlike charges, that means a positive negative or negative positive. Unlike charges, unlike charge, that means a attraction force. Okay student, first one आप याद रखेंगे. पहले आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि चार्ज क्या होता है. बाय द definition of the charge we can define the definition of current. First one, charge, that means a Q equals to always Ne, positive negative Ne. N that means a number of electrons and E that means a charge of single electron. Q that means charge, E that means a charge of single electron. Q equals to plus minus Ne, where N is the number of electron. Student, charge basically two types. First one is the positive and second one is the negative. जब भी हम दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज होंगे तो उन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा? रिपल्शन फोर्स. लेट वी कंसीडर कैपिटल A एंड कैपिटल B आर 2 पॉइंट विच कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज. सो हियर we defined a repulsion force between them. When A and B are 2 points which consist two unlike charges, positive and negative, we defined a attraction force, and here we decide a repulsion force. Okay student, here repulsion force between A and B, and here attraction force between A and B. This type of force defined by Coulomb. This type of force defined by the scientist Coulomb. So SI unit of charge is Coulomb. याद रहेगा student. What is the meaning of the Coulomb? Coulomb that means a SI unit of charge. The SI unit of charge is a Coulomb. Okay student. Now amount of current I equal to rate of change in charge. We know that the SI unit of charge is Coulomb and SI unit of time is second. So maybe define the SI unit. SI unit will be equal of Coulomb per second. First one ऐसा भी हम बना सकते थे, but SI unit of current always defined by the ampere. What is the meaning of the ampere? Ampere that means a SI unit of current. First one,
और अगर जो आप एम्पियर के बारे में समझे तो एम्पियर अनदर नेम ऑफ द अनदर साइंटिस्ट। एम्पियर्स लॉ ऑलवेज डिफाइंड फॉर द सर्कुलर लूप। ये चीज आपको समझ नहीं आएगी, फिर भी मैं बता रहा हूँ। एम्पियर ने सर्कुलर लॉ में मैग्नेटिक लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए लॉ बनाया था, एम्पियर्स लॉ। स्टूडेंट, I equal to Q by T. I, that means a current, ratio between the charge and time. Indirectly मैं बोल सकता हूँ the rate of change, the rate of change in charge are known as current. Okay student, it is represented by capital I. The SI unit of current is ampere, capital A. I equals to Q by D, where Q is a charge and T is a time. This is a definition of current. बट अगर जो आप बोलेंगे सर करंट क्या होता है, तो हम ध्यान से समझेंगे। लेट वी consider this is a part of any metal which consists number of electrons. We provide the charge from this and capital A. Let we consider amount of charge will be equal of 2 एम्पियर। हमने कितना चार्ज दिया स्टूडेंट? 2 एम्पियर। तो ये चार्ज किसको मिलेगा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज प्रोवाइड करेगा सेकंड को, सेकंड थर्ड को, थर्ड फोर्थ को, फोर्थ फिफ्थ को, एंड फाइनली वी गेटिंग हियर चार्ज विल बी इक्वल ऑफ 2 एम्पियर। ठीक है, द फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आर नोन एज करेंट। ओके स्टूडेंट, this is a property of flow of charge, but current, the direction of flow of current always positive to negative. The direction of flow of current, let me consider this is a external source capital B, that means a battery, positive terminal, negative terminal. अभी तक हमने क्या सीखा? The rate of change in charge are known as current. The SI unit of current ampere, that means a capital A, symbol will be equal of capital I, formula I equal to Q by T. Okay student, second thing हम बोल रहे हैं the direction of flow of current always positive to negative. The direction of flow of current always positive to negative. Third one, the direction of flow of electron always negative to positive. Both are opposite to each other. याद रहेगा, the direction of flow of current positive to negative, the direction of flow of electron negative to positive. Q, that means a total charge. E, that means a charge of electron. T, that means a taken time interval. Okay student, यहाँ पर इस चैप्टर में मुझे 3 चीजों पे बहुत ज्यादा डिस्कशन करना। IVR, व्हाट इज द मीन ऑफ द I that means a current. Now we getting the capital V. What is the mean of the capital V? Let we consider any insulating copper wire or resistance capital R. अब आप बोलेंगे सर ये वायर और रेजिस्टेंस क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट। जब आप मार्केट में बोलेंगे कि मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, तो वो आपको एक रेजिस्टेंस देगा जिसपे कितनी रिंग बनी होगी? 1 2 3 4 रिंग्स। हाउ मेनी रिंग्स आर देयर स्टूडेंट? 4 rings are there. 3 rings are very close, 1 2 3, apart from some distance 4th ring. ये जो 3 रिंग है ये सेम कलर की भी हो सकती है, डिफरेंट कलर्स की भी हो सकती है, एंड 4th या तो वो गोल्डन होगी या सिल्वर होगी, या गोल्ड सिल्वर और नो रिंग, मतलब यहाँ पर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दिस रिंग रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम एंड दिस रिप्रेजेंट द टॉलरेंस, दैट मीन्स द इम्पीडेंस इन द फॉर्म ऑफ प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 20%. Gold, that means a plus minus 5%, silver, that means a plus minus 10%, नो रिंग, that means a plus minus 20%. ध्यान सुने स्टूडेंट, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे
करंट आपको समझ आ गया? यस। नाउ वी डिफाइन द रेजिस्टेंस। व्हाट इज द मीन ऑफ द रेजिस्टेंस? फॉर एग्जांपल, वापिस से हमने यही मेटल लिया, मेटल कंसिस्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट जब भी हम किसी चीज को डीकम्पोज या कंपोज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मार्कर भी मशीन से बना है, तो जब हम किसी भी मेटल को सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में, वो क्या हो जाएगा? लिक्विड। वेरी गुड। रॉड बनाना है या हमको फॉर एग्जाम्पल एक प्लेन बनाना, शीट बनाना, पतरा बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो हमको पहले उसको क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे हम उसको एक शेप में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम यहाँ पर करते हैं तो इस प्रोसेस में थोड़ी थोड़ी एयर रह जाती है। एयर दैट मीन्स अ बबल, बबल दैट मीन्स अ होल। याद रहेगा, दैट मीन्स अ एवरी मेटल कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड वन इज द होल। क्या होता है उसमें? या इलेक्ट्रॉन होंगे और कुछ कुछ होल भी होंगे। जैसे यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ओके स्टूडेंट, तो ये जो होल है इसमें थोड़ा बहुत चार्ज कंज्यूम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्लेन रोड है और मैंने यहाँ से वाटर सप्लाई करा है, बट उसमें क्या है? डीप, मतलब गड्ढे हैं, तो उन गड्ढों में पानी क्या हो जाएगा? कलेक्ट हो जाएगा। मैंने इधर से 100 लीटर दिया तो उधर मुझे कितना मिल रहा है? 90 लीटर। तो 10 लीटर क्या हुआ? कंज्यूम बाय द डीप। तो यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज कंज्यूम बाय द होल। फिर से सुनिए, होल क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करके रख लेते हैं। यहाँ पे 2 एम्पियर है तो यहाँ पर कितना मिलेगा मुझे? 1.8 एम्पियर फॉर एग्जाम्पल। तो कितना? 0.2 एम्पियर लॉस हो गया। तो लॉस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। इनको क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, दिस इज अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रेजिस्टेंस एंड this is a circuit diagram of resistance. In resistance consists the 4 lines. First 3 line represent the color code and fourth represent the impurities, golden, silver or no ring. Okay student, that is current, this is resistance. Now we used current and resistance both. Let me consider this is a any external source, that means a battery. अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा बैटरी क्या होता है स्टूडेंट? when number of cell, 1 cell, 2 cell, 3 cell, cell that means a symbol. Okay student, positive terminal and negative terminal, but number of cells अरेंज इन द सीरीज फॉर्म, बहुत सारे सेल को हमने कनेक्ट कर लिया तो हम उसको क्या बोलेंगे? बैटरी। बैटरी कंसिस्ट पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल बोथ एज वेल एज सेल। तो यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है? नेगेटिव। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपसे जो पूछूंगा उसका आप दिल से एक रिजल्ट बताइएगा। हमने एक गैस सिलेंडर के ऊपर, हमारा जो घर पे जो भी इंडक्शन कुकर है जो भी है उसके ऊपर हमने एक बर्तन को रखा है और नीचे से हम क्या दे रहे हैं? वेरी गुड, ठीक है, गैस मतलब हीट। तो जैसे ही वहां पर हीट देंगे तो बर्तन में क्या होने लग जाएगा? धीरे 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 हीट जनरेट होगा। तो अगर जो हम किसी बैटरी एक्सटर्नल सोर्स से हम किसी एक वायर में लगातार करंट देंगे, लगातार करंट देंगे, करंट तो फ्लो हो ही रहा है, बट वो वायर में क्या जनरेट हो जाती है? आपने टच करा होगा, गर्म हो जाता है। आपने एक बल्ब या CFL को भी यूज करा होगा तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। यस और नो स्टूडेंट? तो ये जो मैं हीट बोल रहा हूं, दिस फॉर्म ऑफ द हीट आर नोन एज द पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन ऑफ द पोटेंशियल? पोटेंशियल that means V will be equal of I into R. What is the mean of the I? Amount of current, and R that means the resistance. Amount of potential will be product between the amount of current and resistance, such that we can say V is a directly proportional I, V is a directly proportional R. ठीक है, फिर से बताता हूँ धीरे धीरे। अमाउंट ऑफ करंट आपको समझ आया? यस। रेजिस्टेंस आपको समझ आया? यस। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट मी कंसिडर दिस इज माय ब्यूटीफुल हाउस विच कंसिस्ट अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, और भी बहुत सारी चीजें है, बैटरी है, इन्वर्टर है, एंड सो ऑन। लेट मी कंसिडर व्हाट इज दिस? दिस इज अ एग्जांपल ऑफ CFL ऑफ 100 वोल्ट। कितना वोल्ट स्टूडेंट? 100। बट मेरे घर में बाय पावर हाउस सॉरी
by use of the powerhouse we gain the electricity of 220 वोल्ट। अगर जो 220 वोल्ट इस 100 वोल्ट में डायरेक्ट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्यूज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, 220 वोल्ट डायरेक्ट जाएगा तो ये 100 वोल्ट क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट we used a resistance of 120 वोल्ट। ध्यान से देखिए 100 प्लस 120 विल बी इक्वल ऑफ 220, मतलब हमने इनमें एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाया है जिससे 120 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए, रेजिस्टेंस के द्वारा खा ली जाए। तो बचा कितना, 100। तो इससे ये CFL ऑन भी हो जाएगा और ये फ्यूज होने से भी बच जाएगा। तो ये जो हमने एक सर्किट लगाया है, ठीक है, विद द बल्ब के अंदर, तो इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, रेजिस्टेंस आपने रियल लाइफ में बहुत बार देखा होगा। आप जब भी कोई भी 100, 200, 300 वोल्ट का बल्ब यूज करेंगे तो बल्ब के ऑपोजिट साइड देखिएगा ब्लैक कलर का कुछ होता है, उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट, रेजिस्टेंस। ओके, दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल और यूज इन आवर डेली लाइफ। सो अमाउंट ऑफ करंट I इक्वल टू Q बाई T, रेजिस्टेंस आपने समझ लिया रेजिस्टेंस। अगर जो मैं रेजिस्टेंस की डेफिनेशन दूंगा तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा ओम्स लॉ। तो अगले लेक्चर में हम बहुत अच्छे से देखेंगे ओम्स लॉ। दिस इज अ एग्जांपल रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। नाउ स्टूडेंट, टाइम टू डिफाइन द वोल्टेज। व्हाट इज द मीन ऑफ द वोल्टेज? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस बोथ आर सिमिलर इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। हीट, जब भी हम किसी में लगातार करंट को फ्लो करते हैं तो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर जो डेवलप होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हीट बोलते हैं। सो इट इज डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, पोटेंशियल दैट मीन्स अ वोल्टेज डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ करंट। फर्स्ट वन, V is a directly proportional of I, and second one, V is a directly proportional of R, such that by equation first and second, by use of the equation number first and second, we can say V is a directly proportional of IR. ठीक है, proportional replaced by any constant, that means a K, and K will be equal of 1, such that we can say V equal to IR. The definition of potential. What is the definition of the potential? The product between the amount of current and resistance are known as the potential. Okay student, we getting the three words, capital I, capital V, capital R. Capital I, that means a current, capital V, that means a potential, capital R, that means a resistance. Okay student, then after the value of I equals to Q by T. Definition, the rate of change in charge are known as current. Second one, potential, the product between the amount of current and resistance are known as potential. The value of resistance, the ratio between the potential and amount of current are known as the resistance. Okay student, देखिए तीनों अभी तक हमने जो सीखा उसको देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर SI यूनिट की बात हो रही है। SI यूनिट दैट मीन्स अ एम्पियर। द SI यूनिट of current is a ampere. It is represented by A. The SI unit of potential are known as voltage, denoted by V. The SI unit of resistance denoted by ohm, symbol ohm. Okay student, अब यहाँ पर अगर जो आपको इनके न्यूमेरिकल्स देखने हैं तो जब हमको चार्ज और टाइम दिया रहेगा, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड टाइम, देन वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ आई। यहाँ पर आई और आर दिया है तो वैल्यू को पुट करेंगे, क्या निकालेंगे, वोल्टेज। और इन दोनों कंडीशन में ओके स्टूडेंट, वी और आई को पुट करेंगे तो हमको निकलेगा आर। आर दैट मीन्स अ रेजिस्टेंस। अभी इनका हम सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। करंट, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव। पोटेंशियल, पोटेंशियल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट? लेट वी कंसिडर दिस इज अ पॉइंट कैपिटल ए एंड दिस इज अ पॉइंट कैपिटल बी। If A connect with the positive terminal and B connect with the negative terminal, so potential difference represented by VA minus VB. ध्यान से देखिए A to B, the amount of current always passing through
positive to negative, so it is represented by VA minus VB. Okay, student. Now, finally, resistance. Resistance represented by like this. नाउ वेरिएशन, ये अगर जो हमको ये देखना है रेजिस्टेंस में और क्या क्या होता है, तो रेजिस्टेंस भी हम दो टाइप के बोलेंगे. फर्स्ट वन इज अ रेजिस्टेंस एंड सेकंड वन इज अ रेजिस्टेंस. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस? What is the basic difference between the resistance and resistance? Resistance, the value of resistance always constant. The value of resistance always constant. That means 5 ohm तो 5 ohm में रहेगा, but the value of resistance are variable. क्या बोलूँगा इसको? ये क्या है मेरे लिए? कांस्टेंट है, और ये मेरे लिए क्या है स्टूडेंट? वेरिएबल है. इनिशियल टाइम में इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0. ये शेप कुछ ऐसा होता है. ये कितना हो गया? 0. देन 1 2 3 4 5 6 7 8 डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ मशीन. में भी जो हम लैब में यूज करते हैं हमारे स्कूल लैब्स में, वो कितना होता है? लगभग 280 ओम तक. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज अ बेसिक explanation related to chapter number 12 electricity on the basis of current, voltage and resistance. Okay student, next part में हम देखेंगे what is the importance of the Ohm's law. ठीक है, electrodes, dry cell and so on. I hope student you getting the proper concept related to current, voltage and resistance. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajuda. Student, please like, share and also subscribe our channel, and please study from our channel for all subjects. Thank you so much.